ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମିଡିଏଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଦେଖ ମିଡିଏଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆମେ ଅଲରେଡି ସାରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ହେଲା। रे ହଁ କାହାର ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ର ପରେ କଲ୍ କର। ଦେଖ ଆମେ ମିଡିଏଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ଆମେ ସରିଥିଲା। ଦେଖ ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ କରୁଥା ହେଲା। ରିଭାଇଜ ନ କଲେ କିଛି ମନେ ରହିବନି। ମିଡିଏଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗପ ଗୁଡାକ ଟିକେ ରିଭାଇଜ ନ କଲେ ମନେ ରହିବନି ଜିନିଷ ଗୁଡା କଣ କଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ରିଭ୍ୟୁ କରିଦଉଛି। आज हम स्टार्ट करिबा विजयनगर एम्पायर, विजयनगर किंगडम हैला। देखो आमे दिल्ली सुल्तानेट रे आमे ऑडिबल प्रॉपर्ली अच्छा दिल्ली सुल्तानेट आमे करिथिले। दिल्ली सुल्तानेट केते 1206 रु केते 1206 रु 1526 हैला। 1526 रे बाबर आसी गला तो 1526 पर हम स्टार्ट हे जिवो कोन मुगल डायनेस्टी। तो दिल्ली सुल्तानेट रे हम पढ़िथिले पांचटा डायनेस्टी पढ़िथिले। फर्स्ट ला स्लेव डायनेस्टी, दास वंश हैला। तापरे सेकंड रे पढ़ले कोन, सेकंड रे पढ़ले खिलजी, KHALJI, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी सबुठु कम समय पर्यंत शासन करथिला हैला खिलजी डायनेस्टी। तीन रे हम पढ़ले तुगलक डायनेस्टी, तुगलक LAQ, तुगलक डायनेस्टी। चार रे हम पढ़ले साइद डायनेस्टी, साइद डायनेस्टी। एवं पांच रे हम पढ़ले कोन लोधी डायनेस्टी। ये सब नॉर्थ इंडिया रे थिला। तो मेन हेले आमे तुगलक डायनेस्टी रे राजा थिले तांका नाम होची कोन MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अरे मन अछि नहीं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक समय कोन हेतिला तो जानि थो। ए समय मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक कोन हला मोहम्मद बिन तुगलक जाइथिले नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया इन्वेशन रे जाइथिले। और से समय साउथ इंडिया रे से जाइथिले। साउथ इंडिया रो गोटे जगह अछि, से जगह नामटा होची काम्पी हैला। कृष्णा नदी पर माने कृष्णा नदी साउथ को देखो एमबीटी का समय रे हम कहि दउ। देखो देखो एटा मनकर हमर इंडिया हैला। एटा दिल्ली, एटी एमबीटी बर्तन अछि मोहम्मद बिन तुगलक हैला ए समय रे। तो साउथ इंडिया असले एक जगह थिला तार नाम होची काम्पी हैला। कृष्णा नदी पर तो कृष्णा नदी साउथ को तो नाम होची काम्पी। एठी दी जण कोन थिले माने सेनापति टाइप रो सोल थिले। तांका नाम जण होची कोन हरिहर, हरिहर आ बोले बुक्का हैला। ये कमांडर थिले। ए दी जण को सेना बंदी करके नै जाइथिले एमबीटी हैला। दिल्ली नै जाइथिले दी जण हरिहर और बुक्का हैला। ए जाडन थिला काम्पी। माने कोन थिले सेना नायक थिले। तो जहाँ कहानी अच्छी जहाँ कह जाऊँ जे जितेबाला एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक आसते साउथ इंडिया इन्भांस ये दी जन को सेनापति को नहीं जाते बांधिकी सहित है।
ତ ନେଇଗଲା ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଏମବିଡି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ ହୁଅ ତମେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଇସଲାମ ରିଲିଜନକୁ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କର। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଇସଲାମକୁ କ'ଣ ଆଡପ୍ଟ କରିନେଇଥିଲେ। କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ ଭାବିଲେ ଯେ ଏମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲିମକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମର ହେଇଗଲେ। ତ ସେମାନେ ଯାଇ ପଠେଇଲେ ଯାଅ ତୁମେ ପୁରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁରା ଜୟ କରିକି ଆଣ ମାନେ ସେଠି ଆମର ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଆମ କିଙ୍ଗଡମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଅଛି ତ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବାର ଅଛି ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଥିରେ ବୋଧେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ମେନଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟର ସେମାନେ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବିକଜ ଦେଖ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ତ ସାଉଥ ପେନିନସୁଲା ରିଜନ ଦିପଟେ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆରାବିଆନ ସି ଦିପଟେ ଅଛି ତେଣୁ ମେନଲି ଆମକୁ ଏଠି କ'ଣ ହବ ମାନେ ଟ୍ରେଡ ବିଜନେସ ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ହେଲା। ତା ସହିତ ସେପଟେ ମୁଗଲ ଇନଭାସନ ସରି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ମଙ୍ଗୋଲ ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ଇନଭେଟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋର୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତ ପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେହେତୁ ହରିହର ବୁକା ଏମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ କୋଉଠି ଏମିତି ମାନେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ଭାବିଲେ ଯେ ଏମାନେ ତ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲିମକୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବେ ନା ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଯାଅ ତମେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିଗଲେ ଏରିଆକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ସ୍କଲାରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ କିରେ ବୈଦ୍ୟାରଣ୍ୟ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦେଖା ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବୈଦ୍ୟାରଣ୍ୟ। ଇଏ ହେଲେ ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହେଲା ବୈଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ମାନେ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ BDYA ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ RANYA ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ହେଲା। ଆଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଇଏ ଆଙ୍କର ଟିଚିଂ ରେ ବା ଆଙ୍କର ଇଏରେ ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲେ ମାନେ ପୁଣି କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ହିନ୍ଦୁକୁ। ହରିହର ବୁକା ଏଠିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନି ନେଲେ ସିଏ ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଇଏ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏଇଟା ସରିଲେ ଆମେ ଭକ୍ତିର ପୁଣି ପଢିବା ହେଲା ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପରେ ପଢିବା ଭକ୍ତି ସୁଫି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଆଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନି ନେଲେ ଆସିକି ଦି ଜଣ ଏ ଦି ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରିହର ବୁକା ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁରୁ ମାନିନେଲେ ମାନିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ତାର ପୁଣି କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ କୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜନ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ବନିଗଲେ। ହିନ୍ଦୁ ବନିଗଲା ପରେ ତାପରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଏମବିଡିଙ୍କର ବା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ସମୟରେ ଏତେ ପକଡ଼ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ପକଡ଼ ନଥିଲା ତ କାଫି ଲୁଜ ହେଲା ତ ଏମାନେ ଏପଟ ଏରିଆକୁ ଏଇ ମାନେ କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀର ସାଉଥ ସାଇଡଟାକୁ ପୁରା କ'ଣ କଲେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଲେ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ କିଙ୍ଗଡମ କରିବୁ। ତେଣୁ ମିଡିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗଡମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଯାହାର ନାଁ ଦେଲେ ବିଜୟନଗର। ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଏଟାକୁ ବନେଇଲେ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ବିଜୟନଗର ବିଜୟ କରିକି ବନେଇଲେ ବୋଲି ବିଜୟନଗର ଦେଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହରିହର ଆଉ ବୁକା। ତେଣୁ ହରିହର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହରିହର ୱାନ୍ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ବୁକା ୱାନ୍ ହରିହର ୱାନ୍। ତେଣୁ ହରିହର ୱାନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର ଦି ଭାଇ ଯାକ ଫାଉଣ୍ଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରିହର ବୁକା କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ବନିଲେ କି ହରିହର ୱାନ୍। ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଠୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଦେଖ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବିଜୟନଗର ମାନେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ସାଉଥକୁ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଏରିଆଟାକୁ ସେମାନେ ବିଜୟନଗର କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବଂଶଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସଙ୍ଗମ ହେଲା ହରିହର ବୁକା ତାଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସଙ୍ଗମ। ହରିହର ବୁକା ତାଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସଙ୍ଗମ। ଫାଦରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କି ସଙ୍ଗମ। ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରରେ ପଢିବା ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ବହୁତ ବଡ ସେକ୍ସନ ଅଛି ସେଟା ପରେ ପଢିବା ହେଲା। ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚରଟା ପରେ କରିବା ଆଗେ ମୁଁ ଏଇଟା ସାରିଦବା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଇଏରୁ। ତ ଇଏ ହେଲା କି ଫାଦର ହେଲେ ଫାଦରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିତାଜୀଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କଲେ ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜବଂଶର ନାଁ କରିଗଲା ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଏଟା ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଏଇଟା କେତେବେଳକୁ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା 1336 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ହେଲା 1336 ବେଳକୁ ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟିର କ'ଣ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଜାଣିଥିବ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଡ୍ର କରୁଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଦେଖ।
ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ, କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ଏଇଟା ହେଲା। ତ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଗୋଟେ ଆର ଗୋଟେ ଶାଖା ନଦୀ ଥିଲା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ହେଲା, ଆସନ୍ତା ମିଶିଛି। ତେଣୁ ଏପଟେ କ'ଣ, କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀର ଉପର ପଡ଼ିଥିଲା ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରେ ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି, ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି, ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଆଉ ତଳ ଭାଗଟା ବା ସାଉଥକୁ ଥିଲା କ'ଣ, ବିଜୟନଗର ଡାଇନାଷ୍ଟି, ବିଜୟନଗର ଡାଇନାଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ହେଲା, କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ, କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର। କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର, ଏଇଟା ହେଲା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ରିଭର, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ରିଭର, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରାଟା କ୍ରିଷ୍ଣାର କ'ଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ରହିଲା, ଏଇ ଏରିଆଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୋଆବ, ଦୋଆବ ଏରିଆ କୁହାଗଲା। ଦୋଆବ କ'ଣ କିରେ, ଦୋଆବ ହେଲା, ଦୋଆବ। ଦେଖ ଅବ ମାନେ ହେଲା ପାଣି, ଦୋ ମାନେ ହେଲା ଦୁଇ, ଦୁଇଟା ପାଣିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ। ମାନେ ଉପରେ ରହିଲା କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ପାଣି, ତଳେ ରହିଲା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର, ସରି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀର ପାଣି। ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଏରିଆଟା ରହିଲା, ଏଇଟାକୁ ହେଲା ଦୋଆବ ଏରିଆ। এই দোଆବ ଏରିଆ କାହିଁ କୁହାହଉଛି, ବିକଜ ଦିଟା ପାଣିରେ ଆବ ମାନେ ପାଣି, ଦିଟା ପାଣି ମଝିରେ ଏରିଆଟା ଅଛି ବୋଲି ଦୋଆବ ଏରିଆ କୁହାହଉଛି। ତ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ହେଲା ରାଇଚୁର ହେଲା, ରାଇଚୁର ଦୋଆବ କୁହାଯାଏ, ରାଇଚୁର। ଯେହେତୁ ରାଇଚୁରଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଏରିଆ ଥିଲା, ଦିପଟ ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆଟା ବହୁତ ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ତେଣୁ ରାଇଚୁର ଦୋଆବ କୁହାଉଥିଲା ଏରିଆଟାକୁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଏରିଆଟା ଉପରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଖି ଥିଲା, ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଆଉ ବିଜୟନଗର ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ବିଜୟନଗର ଡାଇନାଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା କେତେ, 1336ରେ। ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି ପରେ ପଢିବା, ହେଲା 1347ରେ, 1347ରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲା ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଉ ଇଏ ବିଜୟନଗର ଡାଇନାଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଇଚୁର ଦୋଆବକୁ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଲାଗି ରହିଲା। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆଟା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ 200 ବର୍ଷ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ହେଲା। ମନେ ରଖ 200 ଇୟର୍ସ, 200 ଇୟର୍ସ ପୁରା ଖାମଦାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ପୁରା 200 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଜୟନଗର ବାଲା ଜିତିଗଲେ, ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା, ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ 200 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଲା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ହଉଥିଲା, ବିକଜ ସେଟା ଯେହେତୁ ଫର୍ଟାଇଲ ଏରିଆ ଥିଲା ହେଲା, କାରଣ ଦିଟା ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆଟା ପୁରା ବହୁତ ଉର୍ବର ଜାଗାଟା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦରକାର, ବିଜୟନଗର ଡାଇନାଷ୍ଟିର ମାନେ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦରକାର। କାରଣ ଦେଖ, ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଉପର ତ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ, ତ ଉପରକୁ ସେମାନେ ତ ଯାଇପାରିବେନି ବେଶୀ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବୁ ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣରେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବି ଦୋଆବ ଏରିଆଟା ବହୁତ ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ତାପରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୟନଗର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ତଳେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସମୁଦ୍ର। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ତାଙ୍କର ବୋନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେନସନ ରହିଲା, ୱାର ଲାଗିଲା, 200 ବର୍ଷ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଜିତିଗଲେ। ପରେ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଆସିଲେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରରେ, ତୁଲୁଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବଢିଆ, ତୁଲୁଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ, ସବୁ 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 ନେଇଗଲେ, ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସବୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଜୟନଗର ଜିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପର କଥା ପରେ ଦେଖିବା। ତ ମେନ୍ ହେଲା ରାଇଚୁର ଦୋଆବକୁ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ରାଇଚୁର ଦୋଆବଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ଆଉ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆଟା। ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଉ ବିଜୟନଗର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା, 200 ବର୍ଷ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟନଗରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ବିଜୟନଗରରେ କ'ଣ ହବ, କରୁଥିଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା। ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯୋଉ ରହିଲା, ଦେଖ ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲେ ବିଜୟନଗର ଅମ୍ପାୟାରରେ। ଆମେ କେତେଟା ପଢିବା, 4ଟା ଡାଇନାଷ୍ଟି କଥା ପଢିବା ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମ ପଢିବା, ଦେଖ ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମ, ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମ, ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା କେତେ, 1336ରେ, 1336 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏଇଟା ମେନଲି ଆଧୁନିକ କ'ଣ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏରିଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏରିଆ। ତାପରେ ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା, ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି, ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି, ବାହାମଣି ଡାଇନାଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଲା 1347ରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଡର୍ନ ଡେ କ'ଣ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଡର୍ନ ଡେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏରିଆରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯୋଉ ଏରିଆଟା କ'ଣ ରହୁଥିଲା, କମନ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏମ୍ବିଟିଙ୍କ ସମୟରେ ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଯୋଉ ଏମ୍ବିଟି ଥିଲେ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ସେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲୁଜ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ବାହାମଣି କିଙ୍ଗଡମ ଆଉ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, ବାହାମଣି ଆଉ କ'ଣ ବିଜୟନଗର,
ବାହାମଣି ଆଉ ବିଜୟନଗର। तुगलक डायनास्टी रो तुगलक LAQ तुगलक डायनास्टी रो एमबीटी हैला। एमबीटी मोहम्मद बिगिन तुगलक समय दुटा तांगे टेकिथिला। ये बाहामणी हेगला हमर केतले 1347 रे और विजयनगर होला 1326 रे 1336 रे हैला। ए दुटा हेगला तेणु एमानक विषय में बर्तमान देखुचंदी। तो प्रथम देखला विजयनगर देखुचंदी। विजयनगर हमर थिला चारिटा डायनास्टी मेनली। विजयनगर किंगडम रे बा विजयनगर एम्पायर रे गोटे हिंदू किंगडम मेडिवल इंडिया गोटे हिंदू किंगडम साउथ इंडिया रे प्रथम एस्टाब्लिश हेतला विजयनगर किंगडम। विजयनगर हैला विजयनगर एम्पायर लिखि दनले विजयनगर एम्पायर। अंगा समय केतरा डायनास्टी थिला। फर्स्ट ला संगम डायनास्टी। ये केतरु केते संगम डायनास्टी होची 1336 रु 1485 1336 रु 1485 संगम डायनास्टी परे हमर आसीबो कोन संगम डायनास्टी पर किए संगम डायनास्टी पर होची के सालुव डायनास्टी सुलभ डायनास्टी है सुलभ डायनास्टी पर हमर आसीबो के से तुलुभ डायनास्टी सब इंपोर्टेंट डायनास्टी एथरे जो हमर महाराजा कृष्णचंद्र देव हैला कृष्णचंद्र देव आंगर एई डर हैला तुलुभ डायनास्टी तापर से आरियडु डायनास्टी आरायडु डायनास्टी हैला एई चारिटा डायनास्टी में विजयनगर एम्पायर देखा हम पढ़िबा। तो आज देखिए वर्तमान संगम डायनास्टी। प्रथम देखिए संगम डायनास्टी हैला संगम डायनास्टी मुझे जमी कहली संगम थिला हरिहर बुका जो दी भाई थिले तांकर बापा का नाम थिला संगम हैला तेणु तांकर बापा का नाम अनुसार से कहले संगम डायनास्टी तांकर वंशर नाम देले संगम डायनास्टी। तांको केबे एमबीडी पठेथिले जा कोन साउथ इंडिया को जय करके आसीबो मिसेबो हम दिल्ली सुल्तान रे मिसेबो किंतु आसला पर तांकर जने गुरु थिले जने महान कोन भक्ति सेन को सहित देखा हला जहां नाम होची कोन बेदारण्य को सहित देखा हला। तो बेदारण्य तांकर टीचिंग रे तांकर स्क्रिप्टिंग जो माने कोन ये रे इन्फ्लुएंस करेगी सेते अनुप्राणित हो गले जे पुनी से माने कोन पुनी हिंदू धर्म को कन्वर्ट हो गले पुनी असला पर से माने कोन एग्नेस्ट रे एमबीडी को एग्नेस्ट रे से माने डिक्लेयर करले जे हम इंडिपेंडेंट डिटरमिनेट वर्किंग किंगडम स्थापन करलु जहां नाम से देले विजयनगर। एक्चुअली तार कैपिटल सिटी से जो एरिया टर कैपिटल सिटी प्रथम कोन थिला कैपिटल सिटी रो कोन थिला कि आनाई मुंडी थिला प्रथमे तापर से माने करदेले विजयनगर कहि दोची प्रथमे जो माने कोन थिला से माने जो कैपिटल थिला प्रथमे से कैपिटल बनेले काको कैपिटल बनेले आनाई मुंडी गोटे जगह थिला आनाई मुंडी किंतु परे सेटा को तार ना परे सेटा कोन करले परे से माने चेंज करी कले विजयनगर स्पेसिफिकली मॉडर्न डे हम्पी हमर हम्पी शहर जोठी अछि से जगहटा हैला हम्पी एटा वर्तमान कर्नाटक रे अछि। हम्पीटा काहे प्रसिद्ध कि रे अरे हम्पीटा काहे प्रसिद्ध हम्पीटा होछि कोठी तुंगभद्रा नदी कूल रे हैला नियर तुंगभद्रा रिवर आपर गुलबर्गा पड़िबा बाहामणी पड़िबा ना गुलबर्गा एटा भी तुंगभद्रा नदी रो सेटा गुलबर्गा तांकर कैपिटल थिला एटा पर कथा देखिबा जे हम्पी शहर होछि तुंगभद्रा नदी कूल रे हैला तेणु हम्पी शहर को वर्तमान यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेरेशन है यूनेस्को द्वारा एससीओ यूनेस्को द्वारा कौन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी हैला माने विजयनगर जो कैपिटल सिटी था प्रथम आनाई मुंडी थिला विजयनगर से हम्पी प्रथम हम्पी कहला तो हम्पी हो तार कैपिटल सिटी थिला ता माने हैला। तो संगम डायनास्टी हैला तो संगम डायनास्टी रो जो फाउंडर थिले हैला संगम डायनास्टी जे फाउंडर थिले तांका नाम होची कोन हरिहर बुका किंतु राजा हेले हरिहर वन जेतु से बड़ भाई थिले हरिहर वन हेले राजा हरिहर वन हैला ये हेले कोन ये हेले फाउंडर ऑफ संगम डायनास्टी
फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी बा फर्स्ट किंग है FOUND फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी अच्छी कहार विजयनगर एम्पायर भितर फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी तापर हरिहर वन का समय आउ कौन होता हरिहर जो वन शासन कले शासन काल के 1336 रु 1356 है 1336 रु 1356 प्राय 20 वर्ष खंडे शासन कले तापर आंकर कौन थिला ना ये फाउंडर ऑफ कौन फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी कहला तापर यही समय आंकरी समय बाहामणी किंगडम रो बाहामणी साहा है बाहामणी साहा आपको को किंगडम रो ऑफ बाहामणी किंगडम कौन कले किंगडम कौन कले ना आक्रमण कले है इन्वेडेड रायचूर दुआब रे को इन्वेड कले प्रथम आंग समय कि से कहली 200 वर्ष का युद्ध लगी रहा तो प्रथम बाहामणी साहा कार आमर बाहामणी किंगडम रो कले हरिहर वन आक्रमण करथिले मेजर इवेंट आंक समय जने बहुत स्कॉलर थिले तांग ना होची कहले सायन हैला जने स्कॉलर थिले आंक समय रे तांग ना होची सायन कौन तांग ना सायन SAYAN सायन तांग ना थिला सायन हैला से कौन लिखिथिले से जो लिखिले से कौन ना वेद ऊपर माने वेद को से एनालिसिस करथिले हैला एटा कहआ जाय कोन वेद पर टीका जोटा कहआ जाउची कोन कमेंट्स ऑन वेद COMM कमेंट्स ऑन वेद BED वेद हैला बाद में लिखि देबो एठी वेद ऊपर टीका ओडिया लिखि देता वेद ऊपर टीका माने कमेंट हैला माने कोडा कोन अछि ता विषय से एनालिसिस करिकि टिके ता पर टिके माने ता निजर विवरण लिखिथिले तांगा ना होजी सायन आंगा सने मेजर थिले का सवाल थिले हरिहर वन के टाइम रे थिले हैला तापर नेक्स्ट आउ कोन थिला तापर नेक्स्ट आंक परे आ मेजर हरिहर वन पर किछि हेनी कारण देखो हरिहर वन काई कहछि कारण आउ जन राजा आसीबे तांगा ना हरिहर 2 हबो सेति माने हरिहर वन दे जाइछि तापर आसले कि से तांगा आंक परे आंकर सान भाई राजा हेले तांगा ना होजी बुक्का वन आंक परे आंग यंगर ब्रदर तांगा ना होजी बुक्का वन हैला सेकंड किंगडम आसे सेकंड संगम डायनेस्टी रो सेकंड राजा थिले तांगा होजी बुक्का वन गोटे कथा मन रख आमे एगुडा पढुछन्नी ओनली फॉर MCQ हैला कारण हमको एगुडा तो मेन रे दरकार नै मेन रे केवल हमको आर्ट एंड कल्चर पार्ट दरकार जे तो आर्ट एंड कल्चर पार्ट अछि सिलेबस रे मेन सिलेबस रे हमको सेही पार्ट दरकार मेन जीएस जीएस 1 रे किंतु प्रिलिम रे तो एगुडा पढि परिबो मेडिवल रो एंशिएंट इंडिया रो क्वेश्चन पढुची तो हमें जस्ट खाली ऊपर ऊपर एवरेज ऊपर जो जिंसडा दरकार टिके पढि जंतु एते डिटेल्स भी आवश्यकता नै हैला जोन डिटेल्स पढिबो एनसीईआरटी रे अछि पढि पारो एनसीईआरटी रे थोड़ा एते दरकार नै हमको एति की मन रखले हम काम हे जिवो हम खाली किछटा करके MCQ सॉल्व करे अछि तेणु आंक परे आंकर भाई हेले बुक्का वन हरिहर वन के परे तांग भाई ना होची बुक्का वन डबल के रे सिंगल के न डबल के बुक्का वन ये हेले राजा तो बुक्का हेले कोन 1356 रु 1300 ए तेरा इडा एते दरकार नै खाली हम नोट करछन लिखि दोछन एडा थोड़ी मन रहबो 1356 रु 1377 एला ये रहिला आंग शासन काल रहिला आंगो को होतला कोन रे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक आंगर वेदर गभीर ज्ञान थिला हला वेद ऊपर तेणु कोन कहतला वेद मार्ग प्रतिष्ठापक हला लेख वेद मार्ग प्रतिष्ठापक वेद मार्ग प्रतिष्ठापक आन कहतले हला तापर कोन हला आंक पर पुणी रायचूर वार दुआब होइथिला रायचूर वार मु कहली माने 200 वर्ष काल नै कि दुआब रायचूर दुआब ऊपर वार हेछि तो आंक समय भी जने बाहामणी किंगडम रो राजा आस्थिले तांका नाम होछि मोहम्मद वन हला लेख मोहम्मद वन ऑफ बाहामणी किंगडम मोहम्मद वन ऑफ बाहामणी किंगडम
ବାହାମଣି କିଙ୍ଗଡମ डिफिटेड बुकावान है डिफिटेड बुकावान है बुकावान फॉर कौन रायचूर दोआब फॉर रायचूर दोआब रायचूर दोआब दोआब है से दीटांग नदीर मध्यमती एरिया दोआब कहुए कि जो जगह ना हूँ रायचूर तेणु रायचूर दोआब कह रायचूर दोआब आंकर जन पुओ थे बुकांगर तांका ना हूँ कौन कि कंपक 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 बोधे कंपक KMPAK कंपक ये कौन कले ना मुदुराई को जाकि कौन करते मुदुराई को इनवाइट करके जीति जाते कंपक कौन कले ओन मुदुराई मदुराई है कंपंकर वाइफ किए थे ना थिला कौन वाइफ थिला ना थिला गंगा देवी है गंगा देवी गंगा देवी ये होଛନ୍ତି वाइफ ऑफ कंपक वाइफ ऑफ कंपक गंगा देवी गोटे बही लिखी मदुराई जीतिले ना तर मदुराई विजय मदुरा ना मदुरा विजय बोले बही लिखी गोटे बुक लिखी ये केमी कौन जीतिले कौन कले ता विषय लिखाई ता ना हूँ कौन मदुरा विजय बही लिखी मदुरा विजय तो आंक समय एति तापर आम देखा बुका वन सरला है तापर देखा 3 नंबर थिले हरिहर 2 3 नंबर राजा आसिले संगम डायनास्टी रो ता ना होची हरिहर 2 देख एगुड़ा ऊपर ऊपर ये लिखु था खाली एगुड़ा कौन दरकार ना आमको जिते माने केवल एमसीक्यू दरकार है एगुड़ा आमको मेन रे पड़ोनी खाली एमसीक्यू दरकार आ मेन रे जो पड़ो ना आर्ट एंड कल्चर सेक्शन हम पुणी डिस्कसन करबा सरिले संगम लिटरेचर पर डिस्कसन करबा संगम लिटरेचर पुणी सबुर जो माने भक्ति भक्ति मुवमेंट भक्ति सुफिसेंट भक्ति सेंट एमान भीतर सेगुड़ा गुड़े डिस्कसन हम तेणु सेगुड़ा दरकार मेन पर्सपेक्टिव प्रिलिम भी एगुड़ा भी दरकार कि मेन भी तार दरकार कि ये जो जिन गुड़ा बर्तमान पढ़ुन केवल एमसीक्यू कारण एगुड़ा आमको एत डिटेल्स भितर को जीवार आवश्यकता नहीं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर ऊपर टिके पकेबे आउ तेणु एगुड़ा एति जानी तेणु हरिहर 2 हरिहर 2 देख हरिहर 2 थी थर्ड राजा थे तो ये 1377 रू ये जो मुझा लिखुनी कि 1377 एगुड़ा मन रखले भी चलो कारण एत जिन मन रही 1377 रू 1404 पर्यटन था खाली पढ़ुं नोट कर दौन है 1377 रू 1404 जाइला ये थे कौन ना सन ऑफ बुक्का वन ये बुक्का वन पुओ थे ये थे सन ऑफ बुक्का वन है हाँ ये थे कौन कि हरिहर 2 थे सन ऑफ बुक्का वन प्रज्ञा आम बर्तमान विजयनगर एम्पायर पढ़ुछु है सन ऑफ बुक्का वन अच्छा आम विजयनगर एम्पायर प्रथम देखिले हरिहर 1 थे तार फाउंडर है 1336 रू 1385 पर्यंत विजयनगर एम्पायर 4टा डायनास्टी थिला अछि 4टा डायनास्टी कथा पढ़ा प्रथम है कौन प्रथम है संगम डायनास्टी पढ़ा आम सुलुप डायनास्टी तुलुप डायनास्टी पढ़ा आरायडु डायनास्टी तो प्रथम हम देखले संगम डायनास्टी प्रथम फाउंडर किए से हरिहर और बुक्का किंतु जेहेतु हरिहर बड़ भाई थे प्रथम राजा है तेणु हरिहर 1 है फाउंडर बोली कहूँ आ हरिहर हरिहर बुक्का भाई सान भाई थे तो हरिहर बुक्का 1 है बुक्का 1 है कौन राजा है बुक्का बुक्का पुओ थे कि हरिहर 2 सी राजा समय चलला 1377 रू 1404 पर्यंत अच्छा आंक समय कौन कौन मेजर इवेंट होता देख ये महाराजाधिराज उपाधि धारण करते फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम जो उपाधि मिलला ना टाइटिल कौन मिलला कि महाराजाधिराज 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 उपाधि मिलला है
धारण करथिले। तापरे ये पूरा ये टिके बहुत योग्य शासक थिले। उम, ये बाहामणिରୁ ଦିଟା ଏରିଆ ନେଇ ଆସିଲେ ଗୋଆ ଆଉ କଣ ଗୋଆ ଆଉ ବେଲଗାଁও ହେଲା ସ୍ନାଚଡ ଗୋଆ and Belgaum from Bahman dynasty ହେଲା from Bahman dynasty from Bahamani dynasty बाहामनी डायनास्टी गोवा और बेलगाम दिटा एरिया नहीं आसते है तापर पूरा साउथ इंडिया को पूरा आंगर विस्तार कर देते है पूरा साउथ इंडिया को निज अख्तियार को नहीं आसते होल साउथ इंडिया एंटायर साउथ इंडिया पूरा अंडर रखला एंटायर साउथ इंडिया महाराजा दी राजा हरिहर टुंगु जे चंद्रगुप्त वन नहीं हरिहर टुंगु फर्स्ट टाइम धारण करते महाराजा दी राजा महाधीर महाधीर कौन लिखली महाधीराजा धीराजा भूल लिखी देछि ना महाधीराजा धीराजा महाधीर है डीएचआई महाधीराजा धीराजा है महाधीराजा धीराजा हरिहर टुंगु है अच्छा तापरे हरिहर टुंगु परे देखो क्वेश्चन कौन बनइबो कि हमको जदी विजयनगर एम्पायर रो किछि क्वेश्चन बनिला खाली त मेन बहुत टाइम जो मोस्ट ऑफ द टाइम आसुछि कि फाउंडर कि हरिहर वन एडा आसुछि हला मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू विभिन्न परीक्षा जो पढिछि हरिहर वन द फाउंडर बोली क्वेश्चन आसुछि तेनु सेटा मन रखे पड़ो तापर भी टिके टिके मन रखि देथिबा कहा समय कोन हाइतला कि रायचूर दुआब कथा क्वेश्चन को रायचूर दुआब रो क्वेश्चन आसुछि रायचूर दुआब ता तुंगभद्रा नदी और कृष्ण नदी मध्यवर्ती एरिया हला तुंगभद्रा नदी कृष्ण नदी ट्रिब्यूटरी नदी तो ताकू नै कि विजयनगर एम्पायर विजयनगर किंगडम आ कोन बाहामणी किंगडम भीतर सब 200 वर्ष काल युद्ध रहला अल्टीमेटली मन जीति गले कि से विजयनगर वाला कारण जने महान राजा आसिले तुलुक डायनास्टी रे हला महाराजा कृष्णचंद्र देव तो पढिबा तांग विषय तेनु सी आसला परे से सब नै आसले सब रायचूर दुआब सब नै कि तांग पूरा ये कर देले तेनु से कथा पर कथा तेनु हमरो मेनली स्लेव डायनास्टी सॉरी संगम डायनास्टी पढछन संगम डायनास्टी रो तांग हरिहर 1 तापर बुक्का 1 तापर हरिहर 2 तापर हरिहर 2 ऊपर देवराय 1 आसी पर चतुर्थ नंबर रे हला देवराय 1 4 नंबर आसीबे देवराय 1 4 नंबर आसीबे देवराय 1 देवराय 1 है 4 नंबर आ जाइए देवराय 1 तो आंकर शासन काल रहला 1404 रु 1422 देखो एडा तो एडा मन रखिया दरकार नै किंतु खाली हम जस्ट नोट पाई लिखि दोसन जदि मन रहला भलो 1404 रु 1422 हिस्ट्री ऑप्शनल पिला में भी मन रखिबे 1404 रु 1422 हला आ ये हला कोन ना ए समय कोन हेतला देखो आंगर जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहला ये तुंगभद्रा नदी पर गोटे डैम कले हला कंस्ट्रक्टेड ए डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर लेखो कंस्ट्रक्टेड ए डैम कोन होतला ना हे समय रे कंस्ट्रक्टेड ए डैम एटा बहुत एमसीक्यू रे आसी हला के करथिले देवराय 1 संगम डायनास्टी रो हला कंस्ट्रक्टेड ए डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर है तुंगभद्रा रिवर प्राणहिता कार उपनदी रे कार शाखा नदी अरे प्राणहिता कार शाखा नदी अरे प्राणहिता कार शाखा नदी प्राणहिता कार गोदावरी एटा कोन प्राणहिता नदी कूल रे बाहुबली सेट लागिथिला बाहुबली सेट लागिथिला प्राणहिता नदी कूल रे प्राणहिता नदी होची कार ना कार जो गोदावरी हला प्राणहिता मंजिरा एगुडा सब मंजिरा बहुत थर पड़लानी प्राणहिता मंजिरा एगुडा बहुत थर पड़ुची कार उपन शाखा नदी बोली तो तुंगभद्रा होची हमर कृष्ण नदी शाखा नदी हला आ तापर देवराय 1 के समय मेजर कोन हला हे समय काफी वाटर शॉर्टेज होतला विजयनगर एरिया रे तेणु ये कौन कले ना गोटे तुंगभद्रा नदी पर डैम कले डैम करके गोटे केनाल बाहर कले सेठू हला केनाल कले करके तापर गोटे केनाल कले कोन पाई ना केनाल नेले कोन सिटी भीतर को हला टू ब्रिंग वाटर टू सिटी केनाल टू ब्रिंग वाटर टू सिटी टू मिनिमाइज कोन वाटर शॉर्टेज टू मिनिमाइज वाटर शॉर्टेज है तो एटा गला गोटे
तापर ये कोन काफी देवराय 1 काफी मुस्लिम भी तांका जो ये सैन्य मानक ये मुस्लिम मानक भी चांस देथिले हैला मुस्लिम सोल्जर भी आंकर थिले मुस्लिम सोल्जर थिले आंकर सैन्य बाहिनी रे मुस्लिम सोल्जर थिले आंकर ये हैला तापर मेजर इवेंट आंकर समय आ कोन हेतिला आंकर समय मन रख जने इटालियन ट्रैवलर आंकर समय आस्थिले एउडा तो पडिबो एमसीक्यू रे कोन एउडा हम मन रखे अछि खाली इटालियन ट्रैवलर जने आस्थिले देवराय 1 के समय रे इटालियन ट्रैवलर हैला इटालियन ट्रैवलर जने आस्थिले इटालियन ट्रैवलर एटा इटाली हैला इटालियन इटालियन ट्रैवलर जने आस्थिले ता ना कोन गिरे हिस्ट्री ऑप्शनल ता ना कहला हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट कोन आकरे ताकर हां ता ना कोन थिला रे निकोलो कोंटी निकोलो कोंटी निकोलो कोंटी हमरा एमसीक्यू रे बनि पारे तो मन रख निकोलो कोंटी CONTI निकोलो कोंटी हैला निकोलो कोंटी थिले आ जने रशियन मर्चेंट भी आस्थिले हेटा तेंबुरा तो लिखि देता ता ना होची कोन ना जने आस्थिले ता ना होची निकितिन 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 जने आस्थिले ता ना होची कोन निकितिन खाली लिखि देता नाटा निकितिन हैला ये जने कोन रशियन मर्चेंट से भी आस्थिले रशियन मर्चेंट एटा बेसी पडुनी निकोलो कांटीटा पडुची रशियन मर्चेंट निकोलो कांटा मन रख निकोलो कांटी आस्थिले इटालियन ट्रैवलर जने आस्थिले आंग समय रे हैला आ कि देवराय 1 को कोन हैला तांकु पुनी भी बहामणी किंगडम रो जने राजा थिले तांगा ना होची कोन फिरोज शाह 1 तांकु डिफीट करथिले ए जो रायचूर दुआब पय रायचूर कोइ रायचूर दुआबटा पर 200 काल का युद्ध लागि रहला तेनु लेख आ गोटे पॉइंट कर तळे लिखि था लेख जे फिरोज शाह 1 ऑफ बहामणी किंगडम of Bahamani kingdom कौन defeated क्या को defeated देवराय 1 को डिफीट करथिले ना पर रायचूर दुआब को लिखि रायचूर दुआब हैला तापरे किंतु कथा ना आंक भितरे माने देवराय 1 का और फिरोज शाह 1 का भितरे आंग दी जण भितरे मैरिज अलायंस हे गला फाइन पारिवारिक संपर्क गढी उठला तापरे मैरिज अलायंस गढी उठिला हला आउ टर्क आर्चर मानो के फिरोज शाह 1 ये बहामणी किंगडम रो राजा थिले बहामणी किंगडम विषय पुणी हम पढिबा से आरंभ कला बहामणी पढला खाली मन रखि तो बहामणी किंगडम रो राजा थिले फिरोज शाह 1 सी हमको डिफीट करथिले का देवराय 1 होचंदी विजयनगर एम्पायर विजयनगर किंगडम रो राजा ससले हमने सुंगम डायनेस्टी रो ए सॉरी संगम डायनेस्टी रो तो हमको से डिफीट करथिले हैला का देवराय 1 ए रायचूर दुआब को लागि युद्ध लागि रहिछि ना हमको 200 वर्ष काल युद्ध लागि रहितला एरिया को नै युद्ध हला पुणी अंगे हम डिफीट करथिले के से फिरोज शाह 1 तेणु आंक भितर कौन है ना मैरिज अलायंस गढ़ी उठला पारिवारिक संपर्क गढ़ी उठला आ गोटे मेजर कथा होची कोन हेतिला ना देवराय 1 को टाइम रे देवराय 1 गोटे थिला टर्क आर्चर हला माने तुर्की रो नहय माने गोटे जगह थिला टर्क TURK टर्क धनुधर मानक के शामिल करथिल तांग युद्ध क्षेत्र रे हला टर्क आर्चर देवराय 1 included टर्क आर्चर तुर्क आर्चर तुर्क तो TURK तुर्क आर्चर माने तुर्की रो नहय कि जगह थिला इंडिया रे टर्क आर्चर माने धनुर्धर माने कोन करथिले माने दैथिले इंक्लूडेड माने कोडे इनटू हिज कोन आर्मी तांका सोल्जर मानक भितर हमको जोग दैथिले एमानकु इंक्लूड करथिले मुस्लिम मानकु दैथिले ए सब का देवराय 1 का टाइम रहितला तो एटा बेले क्वेश्चन आछि टर्क आर्चर एटा जदी आसला तो करबो देवराय 1 करबो अच्छा तापरे देवराय 2 आसिले अंक परे चतुर्थ नंबर राजा चतुर्थ ना पंचम ही हेले केतना नंबर टांगर 3 4 फिफ्थ नंबर लेको फिफ्थ नंबर आसिले कैसे देवराय 2 फिफ्थ नंबर आसिले देवराय 2 फिफ्थ नंबर आसिले देवराय 2 देवराय 2
देवराय 2 आसले 5th नंबर रे 5th नंबर देवराय 2 आसले हला देवराय 2 कोन हला ना आंकर था 1422 रु 1422 रु 46 1446 हला 1446 आंग समय सीमा रहला देवराय 2 कर ये सब बेले कोन ना तांका जो सिंहासन पाखरे कुरान रखुतले हला कुरान नियर हिज थ्रोन नियर पड़ो जे विजयनगर एम्पायर पूरा जे कुरान रखुतले सिंहासन ये होचंदी कोन कुरान हला कुरान रखुतले धर्मग्रंथ कुरान को रखुतले पाखरे तापरे ये कोन एलिफेंट हंटर थिले बहुत ए समय बहुत माने हंटिंग करिवारे माने शौक थिले राजा मानकर ये मानको माने एलिफेंट मानको बहुत हंटिंग करथिले तेनु एलिफेंट हंटर हमको कहउथिला हला एलिफेंट हंटर बा जोटा हम कहउथिले कोन जोटा हम कोन कहउथिले कि रे गजबेटका दैट इज गजबेटका हमको उपाधि मिलिसला गजबेटका जेतु एलिफेंट मानको मारि दउथिले तेनु ना उपाधि दिसला गजबेटका गजबेटका हला गजबेटका काहा उपाधि मिलिसला देवराय 2 अंक समय रे जण एम्बेसडर आस्थिले पर्शियन एम्बेसडर देखो इटालियन एम्बेसडर आस्थिले देवराय 1 को समय रे देवराय 2 को समय रे आस्थिले पर्शियन एम्बेसडर जण आस्थिले अंक समय रे पर्शियन एम्बेसडर तांका थला अब्दुल रजाक RAZZAK अब्दुल रजाक ZAQ बोधे अब्दुल रजाक है देख मन रख आमर देख मन रख जे आमर जिते देवराय 1 को समय आसिले कि इटाली ट्राभेलर ना कौन थी ना थी कौन कि ना निकोलो पोंटी देख ये मन रख आग जब मैप देखा सियाड़ आस प्रथम आसो कौन प्रथम आसो यूरोप इटाली तो यूरोप ना तो यूरोप आसो आसो माने वेस्टर्न एशिया माने मिडल ईस्ट वेस्टर्न एशिया आसो तो वेस्टर्न एशिया आमर जो ईरान टा आमर कोठी वेस्टर्न एशिया तेणु तापर ईरान आसो तेणु सेपट आसला बेलू प्रथम यदि मन रख देवराय 1 को टाइम इटाली आसते इटाली किए निकोलो पोंटी आउ देवराय 2 को समय आसते किए पर्शियन एम्बेसडर ना हूँ अब्दुल रजाक है यहाँ मन रख अब्दुल रजाक आसते देवराय 2 को समय और देवराय 1 को समय आसते निकोल पोंटी होती कह इटाली ट्राभेलर इटाली से ये होती किए पर्शियन में ईरान मॉडर्न डे ईरान अच्छा अब्दुल रजाक ना था अब्दुल रजाक गोटे बही लिखी पर्शियन लांगुएज गोटे बही लिखिले विजयनगर किंगडम उपर ता ना होता कौन कि मतला ई शाहीन बहीटा ना लेख अब्दुल रजाक गोटे बही लिखिले विजयनगर किंगडम को वर्णना करमी कौन अच्छी विषय से बही लिखी अब्दुल रजाक अब्दुल रजाक है ये होचंदी कौन ना ये बही लिखिले ता ना हला मतला ई शाहीन एटा को लैंग्वेज लिखा था पर्शियन लैंग्वेज लिखा था मतला ई शाहीन है ये बहीटा क्या विषय एटा बुकटा गोटे है इट्स ए बुक मतला ई शाहीन तो को विषय लिखाई अबाउट विजयनगर एम्पायर अबाउट विजयनगर किंगडम विषय लिखाई है ये बही जना पड़ुची जे सही समय विजयनगर केतरा ये बही जना पड़ुची से समय ये बही जहाँ लिखाई 300 पोर्ट थिला 300 पोर्ट थिला आ 300 पोर्ट थिला माने नो डाउट माने कोन माने स्ट्रेंथ ऑफ नाभी काफी अधिक थिला तो नाभल स्ट्रेंथ मानकर बहुत बढ़िया थिला हला नाभल स्ट्रेंथ मानकर भलो थिला हला नाभल स्ट्रेंथ मानकर कोन थिला बहुत बढ़िया उच्च कोटिर थिला ता माने नाभल स्ट्रेंथ उच्च कोटिर थिला तो नाभल स्ट्रेंथ भलो थिया जबु ए माने कोन करथिले श्रीलंका को अटैक करथिले देखो आम इंडिया तो आंशियंट इंडिया पढ़ी ना आंशियंट इंडिया रे भी सब चोल डायनेस्टी रो किए राजेंद्र चोल राजा चोल मान सब अटैक करथिले श्रीलंका को पूर्व भी श्रीलंका को अटैक होती 2 थर कि समय
बैजनगर डायनेस्टी रे ये का समय रे माने देवराय टू उनका समय रे अटैक हेतिला का को अटैक हेतिला श्रीलंका को कारण जेहेतु नाभाल स्ट्रेंथ बहुत थिला तो एथर एटा एई सब जिनसडा हम कोथु मिलुची जो मतला ई शाहीन बहिटा लिखा है अब्दुल रजाक लिखिछन से जिनस हम इंफॉर्मेशन मिलुची तो एतिके मेजर जिनस दी पड़िबो 304 थिला नाभाल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया थिला श्रीलंका को माने अटैक करथिले अटैक श्रीलंका हला आंक पर राजा आसिले तांका नाम होची कोन रे मल्लिकार्जुन आंक पर आउ जन राजा आसिले आंक पर आउ जन राजा आसिले हरिहर टू देवराय टू को पर राजा आसिले तांका नाम होची मल्लिकार्जुन ये होसन केते नंबर 6 नंबर रे मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ये बहुत अयोग्य शासन थे अयोग्य थे बहुत ये अयोग्य शासक थे बहुत तेणु आंको कह जाए प्रौढ़ देवप्राय भी कह जाए कौन कर जाए प्रौढ़ प्रौढ़ के स्पेलिंग प्रौढ़ 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 देवप्राय देवराय प्रौढ़ देवराय कह जाए देवराय RAY प्रौढ़ देवराय भी कह जाए है तापरे आंक पर 7 नंबर आसिले 7 नंबर आसिले के 7 नंबर हमर आसिले ताका नाम होची विरूपाक्ष 2 विरूपाक्ष 2 हला विरूपाक्ष 2 ये भी एते भलो आंकर एते नथिला ये सब माने देवराय 2 को पर ओके भलो नथिले ये देवराय ये भी अयोग्य थिले ये भी सेई टाइप रो तेणु आंकर कमांडर इन चीफ थिले जे आंगु मार देथिले ताका ना कमांडर इन चीफ थिले कमांडर इन चीफ आंग सेनापति थिले माने सेना नायक CHIEF तांगा ना होची कोन कि रे सालुभ नरसिंहा ये होसन सालुभ डायनेस्टी रो फाउंडर हैला सालुभ नरसिंहा सालुभ नरसिंह हैला सालुभ नरसिंह थिले ये कोन कहले ना असासिनेटेड का विरूपाक्ष ये कोन कहले ना असासिनेटेड विरूपाक्ष सालुभ ने असासिनेटेड विरूपाक्ष and founded कौन सालुभ डायनेस्टी सालुभ डायनेस्टी बुझा पड़ला तेणु एटा को कहा जाए गोटे मिनिट कांग्रेस देखो आमर मेनली जो दिल्ली सुल्तान से हणा कटा होते से धीरे जाक मारिक सी मारिक सी एठी सेमती हेनी किंतु फास्ट टाइम ए टाइप गोटे घटना घटिला विजयनगर में तो कहे फास्ट आसासिनेशन कह जाए यहाँ कहे फास्ट आसासिनेशन यहाँ कह जाए कौन ये घटना को जो मारिक करदे आसासिनेटेड कले आसासिनेटेड है ना ये विरूपाक्ष यहाँ कहगला कौन फास्ट आसासिनेशन है फास्ट असासिनेशन देख तो आप जान देख और जान बर्तमान आज पर्यटन कौन पढ़े मुझे कहीदे देख समस्ते बारंबार को रिभाइज करो रिभाइज नकले मेडिवल इंडिया मन रही ये जिन खाली मन रखी अच्छे किसी गप गला मन रखी अच्छे कौन जिन बुझे ना ये तो प्रथम आम दिल्ली सुल्तान स्टार्ट कले 1206 मसीह स्टार्ट है तो दिल्ली सुल्तानेट रे 5टा किंगडम है गोटे स्लेव डायनास्टी सॉरी 5टा डायनास्टी है गोटे स्लेव डायनास्टी खिलजी डायनास्टी तुगलक डायनास्टी शहीद डायनास्टी कौन लोधी डायनास्टी आम तुगलक डायनास्टी जो राजा थे जहाँ ना हूँ MBT मोहम्मद बिन तुगलक
ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ସମୟରେ ଦି ଜଣ ସେନାପତି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହରିହର ଆଉ ବୁକା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଯାଅ, ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଡରିକି ନେଇଗଲେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ହେଲେ କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଲାଗିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସହିତ ମିଶିଗଲେ ତମେ ମାନେ ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ତମକୁ ପଠେଇଲେ ଯେ ତମେ ପୁଣି ବିଜୟନଗରକୁ ସରି ମାନେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ସେପଟ ପୁରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମିଶେଇବ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ସହିତ ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତ ତମେ ଯାଅ। ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ପରେ ସେଠି ଜଣେ ସେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା, ଯିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ସେନ୍ ଥିଲେ ଜଣେ। ଦେଖା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ନା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ରିକନଭର୍ସନ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର କୋଉଠିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବେଦ ଆରଣ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ହରିହର ବୁକା, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବେଦ ଆରଣ୍ୟ ହେଲା। ବେଦ ଆରଣ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ହିନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜବଂଶ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବଂଶର ନାଁ ସେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ। ଯେହେତୁ ହରିହର ଆଉ ବୁକା, ହରିହର ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ, ବୁକା ହେଲେ ସାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ସଙ୍ଗମ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଦେଲେ ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ରାଜା କିଏ ସେ ହେଲେ ହରିହର ୱାନ୍, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ରାଜା ହେଲେ। ଆଉ ହରିହର ୱାନ୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହରିହର ୱାନ୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଉ ମେଜର ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାୟାନ ବୋଲି ଜଣେ ବହୁତ ସ୍କଲାର ଥିଲେ, ଯିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବେଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବେଦକୁ ହେଲା। ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ, ବେଦ पर ଟୀକା ବା ବେଦ ଉପରେ ଟୀକା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଟା ମେଜର ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସାୟାନ ହେଲା। ତାପରେ ହରିହରଙ୍କ ସମୟରେ ହରିହରଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବାହାମଣୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ବାହାମଣ ଶାହା ହେଲା। ବାହାମଣ ଶାହା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାଇଚୁର ଦୋଆବଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରାଇଚୁର ଦୋଆବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଆଉ କ'ଣ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ, ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉର୍ବର ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦୋଆବ ଏରିଆ। ଅବ ମାନେ ପାଣି, ଦୋ ମାନେ ଦୁଇ, ଦିଟା ପାଣିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ କହୁଛି ଦୋଆବ ଏରିଆ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଜାଗାଟା ତା ନାଁ ଥିଲା ରାଇଚୁର, ତେଣୁ ସେଟା କୁହାଯାଏ ରାଇଚୁର ଦୋଆବ। ତେଣୁ ସେଇ ଏରିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାହାମଣୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ବାହାମଣ ଶାହା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ବୁକା ୱାନ୍, ତାପରେ ଆଙ୍କ ପରେ ଆଙ୍କର ପୁଅ ଆସି ଆଙ୍କର ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ରାଜା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୁକା ୱାନ୍। ବୁକାଙ୍କର ବେଦର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବେଦ ମାର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଇଏ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କମ୍ପକ। କମ୍ପକ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମଦୁରାଇକୁ ଜୟ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ କମ୍ପଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ସେ ତେଣୁ ମଦୁରା ବିଜୟ କରି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ମଦୁରାକୁ କେମିତି ବିଜୟ କରାହେଲା ତା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ବୁକାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ 200 ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଇଚୁର ଦୋଆବ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ 200 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ, ଆଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଆଙ୍କ ସମୟରେ ବାହାମଣୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ମହମ୍ମଦ ୱାନ୍ ଆସିକି ଆଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମକୁ ଡିଫିଟ୍ ବି କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେଲେ କିଏ ସେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନି ଯେ ଯୋଉ ବାହାମଣୀ ସରି ଯୋଉ ଆମର ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମ୍ ହେଲା ତାର ରାଜଧାନୀ କରାଗଲା ହାମ୍ପିକୁ। ଆଉ ହାମ୍ପି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ହାମ୍ପି କୋଉଠି ନା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀର କୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସହର। ତାକୁ ହାମ୍ପି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ଡିକ୍ଲାରେସନ ତାକୁ ହେଇଛି ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ଧରୋହର। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କଲା ନା ବୁକା ୱାନ୍ଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେଲେ ଆମର କିଏ ସେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲେ ହରିହର ଟୁ। ହରିହର ଟୁ ହଉଛନ୍ତି କାହାର, ବୁକା ୱାନ୍ଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା। ଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମହାଧିରାଜାଧିରାଜ, ଆଙ୍କୁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଏ ବହୁତ ଏବୁଲ ଲିଡର ଥିଲେ, ଗୋଆ ଓ ବେଲଗାଁও ନେଇଯାଇଥିଲେ କାହାଠୁ ବାହାମଣୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ଠୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ହରିହର ଟୁଙ୍କ ପରେ ଆସିଗଲେ କିଏ ସେ ନା ଦେବରାୟ ୱାନ୍। ଦେବରାୟ ୱାନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସିଟିରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ କାଫି ୱାଟର ସର୍ଟେଜ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାମରୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପାଣି କୋଉଠିକି, ସହରକୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ପଡ଼ିଲେ କେନାଲ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା କେନାଲ କାହାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଡ୍ୟାମ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କାହାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବରାୟ ୱାନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କାଫି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବି ତାଙ୍କ ସୋଲଜରରେ ତାଙ୍କ ଆର୍ମିରେ ରଖିଥିଲେ ସୋଲଜର କରିକି ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ତର୍କ ଆର୍ଚର ବୋଲି କିଛିଟା ଯୋଉ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମାନଙ୍କୁ ତର୍କ ଆର୍ଚର ମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ବି ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ ଇଟାଲିଆନ ଟ୍ରାଭେଲର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ ନିକୋଲୋ କଣ୍ଟି। ଇଏ ଆସିଥିଲେ କାହାର, ଦେବରାୟ ୱାନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ବି ବାହାମଣୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଫିରୋଜ ଶାହ ୱାନ୍, ଯିଏ ପୁଣି ରାଇଚୁର ଦୋଆବ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ହରେଇଥିଲେ। କାହାକୁ, ଫିରୋଜ ଶାହ ୱାନ୍ ହରେଇଥିଲେ କାହାକୁ, ଦେବରାୟ ୱାନ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେବରାୟ ୱାନ୍ଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଦେବରାୟ ଟୁ। ଦେବରାୟ ଟୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମେନ୍ ଖାସିୟତ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜସିଂହାସନ ଥିଲା ତା ପାଖରେ ସେ କୁରାନ ରଖୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ହଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେମିତି କି ହରିଣ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିଏ କ'ଣ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସବୁବେଳେ ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଗଜ ବେଟକା ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଗଜ
गजबेटिका किए देवराय टू है तापर ये समय आउ कथा कथा मुझे आउ गोटे कथा कह भूली जाइए देवराय टू समय जड़े प्रसिद्ध तेलुगु पोएट थे काफी मैंने आडमायर करते काफी ऑनर करते ना श्रीनाथ लिखि दियो बहुत क्वेश्चन देवराय टू रे लेख श्रीनाथ तेलुगु पोएट समय थे श्रीनाथ तेलुगु पोएट समय है दरबार को आसते तो ये काफी माने इंस्पायर होते माने बहुत सम्मान दौते श्रीनाथ तेलुगु पोएट है तापर समय जड़े पर्सियन आंबासीडर आसते ना हूँ अब्दुल रजाक से जमी निकोल कुंटी आसते देवराय वन समय इटालीर समय हमें पर्सियार किए आसते ना हूँ कौन कि अब्दुल रजा गोटे बही लिखी ना हूँ कौन मतला इ शाहीन मतला इ शाहीन विजयनगर किंगडम उपर सब कथा लिखाई आसा कौ भाषा लिखाई पर्सियन लांगुएज लिखाई से लिखाई विजयनगर एम्पायर किंगडम 300टा पोर्ट थी आ 300 पोर्ट अच्छी माने बंदर अच्छी माने मुंडर सन नाभाल बहुत स्ट्रंग थिला आ नाभी जेतु बहुत स्ट्रंग थिला तेणु से कौन कले ना श्रीलंका को आक्रमण करते तेणु देवराय टू समय श्रीलंका आक्रमण होता है पूर्व दी थर होता जो आम एंशिएंट इंडिया पढ़ा है तापर कौन है तापर आसिले अयोग्य राजा तापर जी राजा हेले मल्लिकार्जुन बहुत अयोग्य थे किसी माने ये ना प्रौढ़ देवप्राय भी देवराय भी कहूला तापर विरूपाक्ष टू सी भी एत इन्फ्लुएंस किसी नाला आसासीनेट करके मारिकी किए हत्या करते जे कमांडर इन चीफ थे सेनापति थे सालुभ नरसिंहा सेनापति मारिकी गोटे नुआ वंश स्थापन कले जार ना दिगला सुलुभ डायनास्टी है सुलुभ डायनास्टी फाउंडर किए से सलुभ नरसिंहा किंतु सी भी समय क्वेश्चन आसबनी सलुभ डायनास्टी किसी क्वेश्चन आस फाउंडर की खाली सुलुभ नरसिंहा आसूसी मन रखो से गुड़ा खाली सुलुभ नरसिंहा कि पुओ ना हूँ इमाड़ी नरसिंहा सी हेले कौन इन्फ्लुएंस अयोग्य टाइप रे तेणु इमाड़ी नरसिंहा को भी कमांडर सेनापति जी थे हत्या करते ना हूँ कौन वीर नरसिंहा कौन वीर नरसिंहा कौन देख सुलुभ डायनास्टी मुझे कहीदे सुलुभ डायनास्टी सुलुभ डायनास्टी सालुभ डायनास्टी देखो आंगर फाउंडर किए थे कि फाउंडर किए सलुभ नरसिंह SINGH सलुभ नरसिंह है किंतु ये कौन से इम्पैक्ट नाला पुओ हेले ना हूँ कौन इमाड़ी नरसिंह है हत्या करते कमांडर इन चीफ थे जड़े कमांडर इन चीफ वीर नरसिंह है वीर नरसिंह है वीर नरसिंह आम कमांडर थे कौन वीर नरसिंह किल्ड कौन क्या कौन ये कौन असासिनेटेड बाय वीर नरसिंह बाय वीर नरसिंह वीर नरसिंह आउ तेणु यहाँ को ये असासिनेशन कौन कह यहाँ को आम कहला कौन सेकेंड असासिनेशन फास्ट कार कि फास्ट कार हाँ फास्ट कार विरूपाक्ष सालुवा नरसिंह हाँ यहाँ किए से ना वीर नरसिंह असासिनेटेड है इमाड़ी नरसिंह हत्या कले सेकेंड असासिनेशन है आपर वीर नरसिंह स्थापन कले तुलुभ डायनास्टी तापर आसला तुलुभ डायनास्टी ये हेले किसी वीर नरसिंह आर फाउंडर हेले किसी वीर नरसिंह यहाँ हूँ सब मेन डायनास्टी है पुणी वीर नरसिंह है वीर नरसिंह यही समय तुलुभ डायनास्टी जन राजा आसिले जन राजा आसिले यंगर ब्रदर है यंगर ब्रदर YOUNGER यंगर ब्रदर यंगर ब्रदर जहाँ ना हूँ कौन कि ना हूँ कौन कि कृष्ण देवराय
कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय ये महान राजा थिले जे कि भारत वर्ष नक्शा चेंज करके रखिदेले भारत साउथ इंडिया है। ये कौन थे? ग्रेट रूलर थे जन, ग्रेट रूलर। ये सब राइट्स और द्वाब जो टेंशन थिला सब खत्म कले ये सब प्रथम है। मोस्ट एबुल, मोस्ट एबुल लीडर, मोस्ट एबुल लीडर, मोस्ट एबुल लीडर ऑफ कौन? मोस्ट एबुल लीडर ऑफ कौन? विजयनगर एम्पायर किंगडम, विजयनगर किंगडम, मोस्ट एबुल लीडर ऑफ विजयनगर किंगडम। देख बर्तमान आम जानले पढ़ा तुलुक डायनास्टी और आर्यड डायनास्टी दुईटा रहा। आम आज ये पढ़ी पर क्लास करवा है, पर क्लास आप स्टार्ट करवा। देख आज क्लास भल आज हो पारानी, आज मुझे प्रोब्लेम रही जाती है। आउ जदि शुण जो मानकर आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 जो मानकर हेनी माने आउ थे आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 क्लास करवा है। जो सीटा कौन बहुत पिला क्लास करना कहते से रेकर्डिंग भी से दिन होता से रेकर्डिंग कटि जाता तो हो पार ना तो आउ थे क्लास करदे आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 तो रेकर्डिंग सब अच्छी है। आप कौन पचार तो पचार आप स्टार्ट करिए पुणी नेक्स्ट क्लास रे। हेलो।